हाँ हाँ। आया टॉपिक ही नहीं पता। Good evening, everyone. Today the topic is possession, conveyance, and maintenance. Uh, I have divided the presentation into three parts. First one is possession, second is conveyance, and third one is maintenance. Okay, and under possession, we will discuss in detail regarding first what is possession. Second is the provision under different laws with respect to the possession of a unit, and the third is the analysis of the provision, which we will see. And fourth one is the delay in possession, if there is any delay in possession by the promoter. And fifth one is the case laws, the different case authorities with what they have decided till date in case of delay in possession by the promoter. After that, we will see regarding the under the conveyance part, we will see regarding what is conveyance. Second is provision with respect to the provisions under different law with respect to the conveyance of a unit. And third is analysis of the different provisions. And fourth is the difference between the possession and the conveyance. And after that, we will discuss something about the maintenance part. So first one is possession. पोजेशन इन सिंपल सेंस, अगर हम सिंपल सेंस की बात करें तो पोजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को कंट्रोल करना, या फिर किसी भी चीज का मतलब हमारे पास जो चीज होती है उसको हम पोजेशन कह सकते हैं. लाइक इन सिंपल सेंस इट मींस द स्टेट ऑफ हैविंग, ओनिंग और कंट्रोलिंग समथिंग. एक ब्लैक लॉज डिक्शनरी है जो कि मुझे दिव्यांश ने बताया था कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब यूज करते हैं ब्लैक लॉज डिक्शनरी. तो उसके हिसाब से डेफिनेशन ऑफ पोजीशन जो है वो ये है: द डिटेंशन एंड कंट्रोल और द मैनुअल और आइडियल कस्टडी ऑफ एनीथिंग which may be subject of property for one's use and enjoyment, either as the owner, as the proprietor of a qualified right in it, and either held personally or by another who exercises it in one's place and name. Act or state of possessing that condition of facts under which one can exercise his power over a corporeal thing at his pleasure to the exclusion of all other persons. So in simple sense की बात करें तो it can be defined as the state of having, owning or controlling something. Next is the importance of RERA with respect to the possession of a unit. Like we know that the RERA was implemented to safeguard the interest of the customers. One of the main reasons of implementation of RERA was also that the home buyers were not being provided with the possession of their units on time. So to ensure that the timely bound delivery of the units to the home buyers, RERA casted certain restrictions on the builders and provided the buyers various rights, which we will discuss in the coming slides. Then we will discuss about the provisions and different laws with respect to a possession of a unit. First is section 19(3). Basically section 19 deals with the rights and duties of the allotee. सेक्शन 19(3) के अंदर राइट होता है अलॉटी के पास कि वो एज पर जो डिक्लेरेशन सबमिट कर रखी होती है अंडर सेक्शन 42 LC के अंदर प्रमोटर ने, तो वो उसके पास राइट होता है कि वो उस दिन तक अपना पोजीशन क्लेम कर सकता है. एंड 42 LC के 42 LC क्या कहता है? 42 LC में एक प्रमोटर को एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी होती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट अंडर रेरा, जिसके अंदर वेयर इन अ टाइम पीरियड हैज बीन मेंशन्ड कि प्रोजेक्ट इस टाइम तक एक प्रमोटर कंप्लीट कर देगा एंड पोजीशन वो अलॉटीज को इस टाइम तक दे देगा. Then next is section 1910. सेक्शन 1910 के अंदर ये होता है कि अलॉटी के पास, अलॉटी को एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि विद इन 2 मंथ्स उसके पास राइट होता है कि वो अपना फिजिकल पोजीशन ले सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट. उसके बाद रेरा रूल्स में रिगार्डिंग दिस कुछ नहीं बोला गया है रिगार्डिंग द पोजीशन. After that, जो एग्रीमेंट फॉर सेल लीज रूल्स थे 2018 which was prescribed by the UP real estate Uttar Pradesh real estate regulatory authority. In that clause number 7.2, it talks about procedure for taking possession. इसके अंदर प्रोसीजर होता है कि जैसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट के आने के बाद प्रोमोटर को विद इन 2 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उसको ऑफर करना होता है बाय ऑफर लेटर राइटिंग के अंदर कि अलॉटी को कि वो अपना आए और पोजीशन ले ले. देन क्लॉज 7.3 की बात करता है कि अगर कोई अलॉटी पोजीशन नहीं लेता है आफ्टर की प्रमोटर के कम्युनिकेट होने के बाद भी, और वो अलॉटी अगर पोजीशन नहीं लेता है तो उसके ऊपर होल्डिंग चार्जेस को एक होल्डिंग चार्जेस है जो एक रेट प्रिस्क्राइब्ड है एट द रेट ऑफ 2% at the rate of 2 rupees per month per square feet of carpet area in case of apartment and at the rate of 1 rupee per month per square feet in case of plots. वो उसको लायबल होगा, वो उसको देना होगा. तो ये क्लॉज 7.3 डील करता है. 7.3 बेसिकली फेलियर बताता है ऑफ अलॉटी का टू टेक पोजेशन. अब हम इन सब की बात करें तो इसका बेसिकली
क्रक्स जो हम बात करें तो क्रक्स ये है कि अलॉटी के पास अलॉटी का राइट होता है कि उसको विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी और सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपना पोजीशन लेने का, एंड प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको 2 महीने के अंदर अंदर पोजीशन देना। एंड इसमें बेसिकली हमने जो 7.3 क्लॉज नंबर देखा तो उसके अंदर लाइबिलिटी बताई थी अलॉटी की कि उसको पे करने होंगे होल्डिंग चार्जेस इन केस अगर वो विद इन द टाइम पीरियड वो अपना पोजीशन नहीं ले पाता है, एंड जो कि अब डिले होगा पोजीशन की तरफ से अगर क्योंकि समटाइम्स ये भी होता है, बहुत बार केसेस में ये होता है कि देयर इज अ डिले ऑन पार्ट ऑफ द प्रमोटर इन गिविंग द पोजीशन टू द अलॉटी, देन इन दैट केस वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं और क्या क्या राइट होते हैं अलॉटीज के पास in case of delay in possession by the promoter. Now second thing is delay in possession. डिले इन पोजीशन, अगर वैसे तो डिले इन पोजीशन एक मेजर बहुत सीरियस एक सीरियस रिपरकशंस करता है प्रमोटर के अगेंस्ट, क्योंकि उसके अगर इफ देयर इज एनी डिले इन पोजीशन देन प्रमोटर शैल बी लायबल टू पे द इंटरेस्ट, एंड समटाइम्स उनकी कैंसिल भी हो जाती है यूनिट्स, तो उसके ऊपर उसे पूरा अमाउंट भी रिफंड करना होता है विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब, जो हम आगे देखेंगे कि कितना टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, और उसको कंपेंसेशन भी देना होता है। और उसके साथ साथ तो हम ये आगे चीज देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन नंबर 18, सेक्शन 18(1) जो डील करता है रिगार्डिंग डिले इन पोजीशन। If the promoter fails to complete or is unable to give possession of a unit in accordance with the terms of agreement for sale, or as the case may be duly completed by the date specified therein, or due to the discontinuance of his business as a developer, or on account of suspension or revocation of the registration, अगर ये दो कंडीशन होते हैं कि वो प्रमोटर अपने एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से जो कि उसने डेट प्रिस्क्राइब कर रखी है उसके हिसाब से पोजीशन नहीं दे पाता है, या फिर उसका कोई भी उसने बिजनेस बंद कर देता है, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन ही रिवोक कर देती है अथॉरिटी, तो उस केस में अलॉटी के पास दो राइट होते हैं। बेसिकली पहला राइट होता है कि अगर वो या तो कंटिन्यू करना चाहेगा प्रोजेक्ट में, दूसरी चीज या तो वो कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा प्रोजेक्ट में। फर्स्ट, अगर वो कंटिन्यू नहीं करता प्रोजेक्ट में तो उसको रिफंड मिलेगा एंटायर, जो भी उसने अपनी पूरी अमाउंट दी होगी तो ही शैल बी रिफंडेड विद द एंटायर अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल, जो आगे रेट प्रिस्क्राइब्ड है एज पर द रूल्स और द एग्रीमेंट फॉर सेल रूल्स, तो वो उस हिसाब से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना होगा, प्लस एज वेल एज उसको कंपेंसेशन भी मिलेगा अलॉटी को। सेकंड चीज, अगर वो कंटिन्यू करता है, इफ ही विशेस टू कंटिन्यू इन द प्रोजेक्ट, देन इन दैट केस ही शैल बी, मतलब उसको पोजीशन भी मिलेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट फॉर एवरी मंथ ऑफ डिले टिल द हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजीशन, और वो भी उस रेट पे जो कि प्रिस्क्राइब्ड होगा। तो हम सेक्शन 18(1) को एक क्रक्स में समझे तो उसमें राइट ऑफ अलॉटीज की बात की गई है, जिसके अंदर अगर डिले होता है तो अलॉटी के पास दो राइट होते हैं। फर्स्ट इज विड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड सेकंड इज कंटिन्यू बुकिंग इन द प्रोजेक्ट। अगर वो विड्रॉ करता है प्रोजेक्ट में से तो उसके पास राइट होता है, उसका रिफंड मिलेगा विद इंटरेस्ट विद कंपेंसेशन, एंड अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है अपनी बुकिंग को तो उसको पोजीशन मिलेगा अलॉन्ग विद द डिलेड इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ पोजीशन। ठीक है। सेक्शन 19(4), सेक्शन 19(4) जैसे सेक्शन 19 जो कि मैंने पहले भी बताया कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज की बात करता है, तो उसके अंदर सेक्शन 19(4) आता है जो ये कहता है कि अलॉटी के पास राइट होता है कि वो क्लेम कर सकता है अपना रिफंड अलॉन्ग, अगर देयर इज अ डिले देन वो क्लेम कर सकता है रिफंड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड कंपेंसेशन। ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट और कंपेंसेशन की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट किस रेट पे होगा एंड कितने दिन का उसे मिलेगा, ये हमारा क्लॉज 9.2 बताता है। फर्स्ट क्लॉज 9.1 हम जो पढ़ते हैं ऑफ द एग्रीमेंट फॉर सेल लीज रूल्स 2018, उसके अंदर वही सेक्शन 18 वाली बात ही लिखी होती है कि अगर प्रमोटर कब कंडीशन अंडर अ कंडीशन ऑफ डिफॉल्ट होगा, दो सर्कमस्टांसेस, दो इवेंट्स में वो डिफॉल्टिंग प्रमोटर होगा। फर्स्ट वन इसकी अगर वो पोजीशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट टू सेल, एंड सेकंड वन इज अगर उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देता है बिजनेस, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाता है, तो उस केस में अब क्लॉज 9.2 उसकी बात करता है कि उसको अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो रिफंड ले सकता है, और विद इन उसका प्रमोटर को विद इन 45 डेज उसको रिफंड करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट भी एट द रेट स्पेसिफाई किया इसमें, एट द रेट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट ऑन होम लोन ऑफ SBI प्लस 1%। ये रेरा अथॉरिटीज ने ये बेसिकली अलग अलग अथॉरिटीज डिफरेंट रेट प्रिस्क्राइब करती है। यूपी में प्लस 1% है, राजस्थान में कुछ और कुछ प्लस 2% है आई गेस, तो वो डिफरेंट है। बट इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी अथॉरिटी हैज डिफाइंड दैट इंटरेस्ट शैल बी पेबल एट द रेट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट ऑन होम लोन ऑफ SBI प्लस 1%, और उसको सारा का सारा रिफंड विद इन 45 डेज मिलेगा, और अगर वो रिफंड ही क्लेम करता है तो उसको कंपेंसेशन का भी पूरा राइट है, वो कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकता है। ठीक है। तो ये क्लॉज 9.2 बात करता है।
अब हम अगर एक क्रक्स में पढ़ना चाहें तो क्रक्स में बात करें तो वो ये चीज़ है कि अगर प्रमोटर इज इफ देयर इज एनी डिले इन पोजीशन बाय द प्रमोटर, देन अलॉटी के पास दो राइट होते हैं। फर्स्ट, वो अपनी बुकिंग कंटिन्यू करना चाहता है या फिर वो अपनी बुकिंग कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अगर वो अपनी कंटिन्यू बुकिंग नहीं करना चाहता है, उस केस में उसके पास राइट होता है कि वो रिफंड क्लेम कर सकता है विद इन 45 डेज, प्लस इंटरेस्ट उसको मिलेगा एट द रेट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट प्लस 1% अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल कंपेंसेशन जो भी डिसाइड हो। ठीक है, एंड अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको पोजीशन मिलेगा प्लस डिलेड इंटरेस्ट मिलेगा टिल द हैंडिंग ओवर ऑफ पोजीशन। फिर डिले इन पोजीशन के अगर हम केस लॉस की बात करें तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में 3 केस लॉस ले रखे हैं। फर्स्ट वन इज लेखा ग्रुप वर्सेस स्नोवाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में क्या था, कंप्लेनेंट को इस केस में इस केस में कंप्लेनेंट को पोजीशन प्रोवाइड होना था एज पर हिज एग्रीमेंट टू सेल 21 अक्टूबर 2018 तक। बट तो उसने कंप्लेन फाइल की बिकॉज उसको पोजीशन उस डेट तक नहीं मिला था। बट प्रमोटर ने ऑन द अदर हैंड उसने ये कंटेंट किया कि बिकॉज जो उसने डेट ऑफ एंड डेट जो प्रोवाइड कर रखी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट दैट हैज नॉट इवन बीन लैप्स्ड, तो इसलिए ये कंप्लेन मेंटेनेबल नहीं है। बट अथॉरिटी का इसमें व्यू पॉइंट ये था कि जो डेट एग्रीड है विद द अलॉटीज एज पर द एग्रीमेंट टू सेल, जो भी एग्जीक्यूट हुआ है बिटवीन द पार्टीज, उसको डेट को कंसीडर करेंगे। एंड सेक्शन 18 के हिसाब से उसको क्योंकि इसमें कंप्लेनेंट ने रिफंड डिमांड किया था, तो अथॉरिटी ने भी रिफंड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट विद इन 45 डेज देने का इसको ऑर्डर किया। एंड इसमें बेसिकली कंपेंसेशन की बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप अगर कंप्लेंट करते हो बिफोर द मेंबर्स बेंच, तो उस केस में आपको रिफंड और इंटरेस्ट का ही आपको ऑर्डर हो सकता है। कंपेंसेशन के लिए आपको एक डिफरेंट उसमें कंप्लेंट करनी होगी बिफोर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो होता है वो डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी कंपेंसेशन मिलने का ऑन द बेसिस ऑफ आपने कितना सफर किया, उस बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे और उस हिसाब से आपको मिलेगा। सेकेंड केस इज दिस इज द केस लॉ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर फॉर्च्यून इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस ट्रेवर डेलिमा एंड अदर्स का केस था। इस केस में कोई भी डेट स्पेसिफाइड नहीं थी, ना तो एग्रीमेंट में ना कहीं और, कि उसको कि प्रमोटर अलॉटी को कब तक अपना पोजीशन देगा। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि 3 इयर्स का कि टाइम पीरियड ऑफ 3 इयर्स वुड हैव बीन रीजनेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस केस में कुछ भी कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कि आपको कब तक अलॉटी का पोजीशन देना है बाय द प्रोमोटर, देन इन केस 3 इयर्स इज टू बी कंसीडर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये इस केस लॉ में डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। थर्ड इज महेश, इसमें मैंने एक महाराष्ट्र रेरा का भी केस लॉ लिया है, ये थोड़ा अच्छा केस लॉ था इसलिए हमने इसे कंसीडर किया यहाँ पे। महेश मंगललाल सिक्तोरा एंड जैस्मीना महेश सिक्तोरा एंड अदर्स वर्सेस प्रोपेल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस मैटर में क्या था कि महाराष्ट्र अथॉरिटी के पास जब कंप्लेनेंट ने कंप्लेन फाइल की, उससे पहले ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रमोटर को मिल चुका था एंड प्रमोटर ने अपना ऑफर ऑफ पोजीशन भी अलॉटी को दे रखा था। तो इस केस में अथॉरिटी ने उसकी कंप्लेन को मेंटेनेबल ही नहीं माना और इसमें ये हेल्ड हुआ, इट वाज हेल्ड दैट द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड इन द स्टार्टिंग लाइन ऑफ सेक्शन 18 क्लियरली इंडिकेटेड दैट द प्रोविजन शैल अप्लाई ओनली टिल द प्रोजेक्ट इज इनकम्प्लीट और द प्रमोटर इज अनेबल टू गिव पोजीशन। Once the project construction is complete or the possession is given, as the case may be, the said provision ceases to operate. तो इसलिए इसमें कंप्लेनेंट की जो कंप्लेंट थी वो मेंटेनेबल ही नहीं हुई और ये चीज़ डिसाइड किया। तो ये सब चीज़ हमने पढ़ा था अभी तक डिले इन पोजीशन के केस में। तो एक ओवरऑल क्रक्स समझे तो क्रक्स में ये बात है कि प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड अलॉटी का राइट होता है कि वो विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपना पोजीशन लेगा और प्रमोटर को उसको देना होगा। ठीक है, एंड इसमें फेलियर की भी बात की अलॉटी के लिए कि अलॉटी का क्या अगर फेलियर रहता है कि वो पोजीशन नहीं ले पाता है तो उसको होल्डिंग चार्जेस एट द रेट प्रिस्क्राइब कि 2 रुपये पर मंथ पर स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया इन केस ऑफ अपार्टमेंट एंड ₹1 पर मंथ पर स्क्वायर फीट उसको प्लॉट के केस में देना होगा। एंड इसमें हमने कॉन्सिक्वेंसेज एंड प्रॉब्लम्स की भी बात की जो अगर फेस करता है जो प्रमोटर इन केस ऑफ डिले इन पोजीशन बाय द प्रमोटर। देन हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं जो हमारा कन्वेंस है। कन्वेंस बेसिकली एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। बेसिकली यहाँ पे लोगों को ये मतलब
बहुत एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं होती कि कन्वेंस सेल डीड ही होती है क्या या कन्वेंस डीड क्या होती है। तो बेसिकली इसमें मैं बस ये बताना चाहूँगा कि कन्वेंस डीड जो होती है वो एक बहुत ब्रॉडर टर्म होती है, उसके अंदर सेल डीड भी आती है, उसके अंदर लीज डीड भी आती है एंड उसके अंदर गिफ्ट डीड भी आती है। तो बेसिकली कन्वेंस क्या होता है, व्हाट इज कन्वेंस? तो कन्वेंस अगर हम सिंपल सेंस की बात करें तो कन्वेंस इट इज अ लीगल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। और कुछ भी नहीं है, एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप एक पर्सन के दूसरे पर्सन से ट्रांसफर करने में कन्वेंस आती है और वो भी कन्वेंस डीड के थ्रू होती है। ठीक है, तो एज पर ब्लैक लॉज डिक्शनरी एक बार ये और देख लेते हैं। एज पर ब्लैक लॉज डिक्शनरी, इन स्ट्रिक्ट लीगल सेंस ट्रांसफर ऑफ लीगल टाइटल टू लैंड इन द पॉपुलर सेंस एंड एज जनरली यूज्ड बाय द लॉयर्स, इट डिनोट्स एनी transfer of title, legal or equitable, the transfer of the title of the land from one person or class of person to another। वही चीज कि it can be defined as the legal process of transferring property from one owner to the other owner। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं कि प्रोविजंस अंडर डिफरेंट लॉज विद रिस्पेक्ट टू द कन्वेंस ऑफ अ यूनिट। तो सेक्शन 17(1) होता है ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट का, जिसके अंदर ये बोला गया है, जिसके अंदर ये प्रोविजन है कि प्रोमोटर को एग्जीक्यूट करना होगा कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ द अलॉटी अलोंग विद द अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनल टाइटल इन द कॉमन एरियाज टू द एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज। तो ये चीज करना होगा विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। अब बेसिकली अगर कोई किसी स्टेट में रूल्स नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है कि उसको कब कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करनी होगी इन फेवर ऑफ द अलॉटीज, तो उस केस में कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट होगी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ऐसे सेक्शन 17(1) हमें बताता है। उसके बाद हम कोई भी रूल्स में ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है, ना कोई रेगुलेशंस जो यूपी में है जो वो ये स्पेसिफाई करते हैं रिगार्डिंग कन्वेंस ऑफ द यूनिट। अब आता है एग्रीमेंट फॉर सेल लीज रूल्स 2018 का क्लॉज नंबर 10, जो सब रूल 10 है वो डिफाइन करता है, वो भी सेम जो सेक्शन 17(1) में लिखा है वही चीज बताता है कि विद इन 3 months अगर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता किसी भी स्टेट में तो कन्वेंस डीड शुड बी एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अलॉटीज विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद बात करते हैं जो अब इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि सेक्शन यूपी अपार्टमेंट एक्ट प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनरशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है 2010, तो उस केस के हिसाब से एज पर सेक्शन 4(5) में एक चीज लिखी हुई है कि एक अपार्टमेंट तभी ट्रांसफर कर सकता है प्रमोटर आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक ही ऑब्टेन नहीं किया होता प्रमोटर ने तब तक प्रमोटर के पास राइट नहीं होता कि वो ट्रांसफर करे। अगर वो उससे पहले अगर अलॉटी कन्वेंस डीड कर देता है तो वो बायलॉज का कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा, यूपी अपार्टमेंट एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। एंड बेसिकली एक और चीज इसमें आगे देखते हैं, इसमें वैसे तो ये नोटिफिकेशन इतनी रेलिवेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द कन्वेंस ऑफ द यूनिट, बट ये नोटिफिकेशन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट थी विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। एक यूपी रेरा ने डेटेड 16 सितंबर 2019 को ये दिया था। इसके अंदर एक चीज बताई गई थी क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने में बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में लोग प्रमोटर्स एप्लीकेशन अपनी फाइल कर देते हैं, बट ड्यू टू सम किसी भी रीजंस की वजह से उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपनी एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाते हैं कन्वेंस डीड। तो इसके लिए यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक नोटिफिकेशन लाया जिसमें ईज दी प्रमोटर को भी और अलॉटीज को भी, उसमें ये कहा गया कि अगर 4 सर्टिफिकेट के साथ अगर एक प्रमोटर अपनी कंप्लीशन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन को फाइल कर देता है बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड उस 4 सर्टिफिकेट प्लस उसके बाद अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर उसकी एप्लीकेशन को कोई भी रिफ्यूज नहीं करता, रिजेक्ट नहीं करती कोई भी अथॉरिटी, तो अगले 8 दिन में वो चीज डीम्ड मानी जाती है कि डीम्ड कंप्लीशन वो हो जाएगा। एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि सेक्शन 4(5) जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट था वो भी डीम्ड कंप्लीशन की बात करता था। उसके अंदर ये था कि अगर 3 महीने तक कोई भी प्रमोटर ने जैसे एप्लीकेशन फाइल की और विद इन 3 months उसको कोई भी जवाब नहीं आता है कंपिटेंट अथॉरिटी से, तो वो उसका आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 months उसका वो डीम कंप्लीशन मान लिया जाएगा। एंड जो 4 सर्टिफिकेट जो यूपी अथॉरिटी ने 4 सर्टिफिकेट्स बताए, वो पहला था इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट, सेकंड इज फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, थर्ड इज स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्टिफिकेट एंड फोर्थ इज लिफ्ट इंस्टॉलेशन सेफ्टी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उसके बाद हम इसके एनालिसिस की बात करें तो बेसिकली कन्वेंस के लिए सेक्शन 17(1) ही होता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि अगर कोई लोकल लॉज एप्लीकेबल नहीं होते तो कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ अलॉटीज विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए।
उसके बाद सेक्शन 4.5 है। सेक्शन 4.5 कोई मैक्सिमम लिमिट की बात नहीं करते हैं कि मैक्सिमम कब तक हो जानी चाहिए, वो एक मिनिमम बस इतना सा कहते हैं कि सेक्शन 4.5 बस इतना सा बताता है हमें कि कन्वेंस डीड आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही एक कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो इसमें इसके क्रक्स की बात कर रहे हैं तो ऐसी मतलब तो रेरा स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट द इन द एब्सेंस ऑफ लोकल लॉज द कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ द अलॉटीज शैल बी कैरिड आउट विद द प्रोमोटर विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड उसमें कोई भी मिनिमम नहीं है, तो मैक्सिमम आपको 3 months के अंदर अंदर एग्जीक्यूट कर लेनी चाहिए और मिनिमम तो आपको आफ्टर ऑब्टेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोजेशन एंड कन्वेंस। हाँ, अब एक और चीज इसमें एक और चीज थी कि कन्वेंस डीड, जैसे फॉर द पर्पस ऑफ कन्वेंस ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी कन्वेंस डीड इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड। कन्वेंस डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर एज अ गिफ्ट और एन एक्सचेंज और अ लीज और अ मॉर्गेज। जैसे हमने बात की, कन्वेंस डीड एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, तो एक गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड, लीज डीड और सेल डीड कैन आल्सो बी called as a conveyance deed. Conveyance deed is a broader term that includes any property ownership transfer in the form of a gift, mortgage, lease, exchange, etc. in the favor of the buyer. और बात करें तो all sale deeds are conveyance deed, but not all conveyance deed. सारी conveyance deed sale deed नहीं होती, but सारी sale deeds conveyance deed ही होती है। इसके बाद हम बात करते हैं difference between the possession and the conveyance. First, possession और conveyance. First one is document for execution. बेसिकली पोजेशन देने के लिए एक सिंगल पेपर पे भी ऑफर ऑफ पोजेशन दे देते हैं तो उससे काम हो जाता है, बट कन्वेंस के लिए कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट होती है जिसके लिए प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होते हैं। एंड अब सेकंड उसकी वैलिडिटी, मतलब उसके ओनरशिप की बात करें तो पोजेशन से कोई भी ओनरशिप का प्रूफ नहीं होता, बट कन्वेंस डीड से कन्वेंस डीड इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप। थर्ड, टाइम लिमिट की बात करें तो पोजेशन जैसे कि हमने देखा था कि वैसे तो एंड डेट से पहले देने का होता है और विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का राइट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रमोटर की, प्लस उसका अलॉटी का राइट भी होता है। एंड कन्वेंस डीड की बात करें तो एज पर रेरा कन्वेंस डीड मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। फोर्थ इज गवर्निंग सेक्शन। पोजेशन का बेसिकली सेक्शन 19(3) गवर्न करता है जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज की बात होती है, एंड कन्वेंस का सेक्शन 4.5 भी डील करता है, एंड सेक्शन 17(1) जो कि इधर मिस हो गया लिखना, तो वो सेक्शन 17(1) भी करता है। एंड फिफ्थ वन इज प्रोसीजर। पोजेशन देने का एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि वो ऑफर करेगा बाय एक ऑफर लेटर देके राइटिंग में कि प्रोमोटर की आइए और अपना पोजेशन ले लीजिए। कन्वेंस के लिए प्रॉपर कन्वेंस डीड होती है और उसको रजिस्टर करवाना होता है अपना सब रजिस्ट्रार के पास जाके। कोई भी एक डीड, कोई भी एक स्टैम्प पेपर डॉक्यूमेंट को मतलब एग्जीक्यूट होने के बाद 4 एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 4 months का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर उसको जाके वो रजिस्ट्रार बिफोर द सब रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करवाना होता है उस डॉक्यूमेंट को। फिफ्थ इज फेलियर बाय द अलॉटी। अगर कोई भी अलॉटी का फेलियर होता है इन केस ऑफ मतलब अगर वो पोजीशन नहीं ले पाता है तो उस केस में उसको होल्डिंग चार्जेस पे करने होंगे, जो कि हमने देखा जो रेट्स एप्लीकेबल है उस हिसाब से। एंड कन्वेंस के केस में ऐसा कोई भी कुछ लिखा नहीं हुआ कि कितना कि नो सच प्रोविजन ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी इज देयर फॉर डिले इन एग्जीक्यूटिंग द सेल डीड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटेनेंस। बेसिकली मेंटेनेंस को यहाँ पे इतना कवर नहीं किया हुआ है क्योंकि मेंटेनेंस एसोसिएशन से लिंक्ड होता है, फॉर्मेशन मतलब सोसाइटी से लिंक्ड होता है, तो बेसिकली सोसाइटी का भी एक डिफरेंट एक टॉपिक बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है जो कि एक डिफरेंट जो दीपक प्रेजेंटेशन बना भी रहा है वो बाद में डिस्कस भी करेगा, तो वो चीज़ वहाँ पे डिस्कस हो जाएगी एसोसिएशन की। तो बस एक बेसिकली हम ऊपर से देखेंगे कि मेंटेनेंस का रेरा में क्या लिखा हुआ है। तो हाँ, जैसे कि हमने पता है कि जैसे एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम तक जब तक कि एसोसिएशन फॉर्म नहीं हो पाती है क्योंकि कुछ कंडीशंस होती है उसके मतलब उस जब वो कंडीशन फुलफिल होती है तभी मैंडेटरी होता है फॉर्म करना, और उससे पहले ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी ऑप्शनल होता है कि प्रमोटर करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो तब तक प्रमोटर के राइट्स होते हैं, प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टिल द टेकिंग ओवर ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द एसोसिएशन। द प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोवाइड एंड मेंटेन द एसेंशियल सर्विसेज ऑन रीजनेबल चार्जेस। अब इसके अंदर क्लॉज 11 है जो एग्रीमेंट फॉर सेल लीज रूल्स का, वो बात करता है मेंटेनेंस की। उसके अंदर एक चीज लिखी हुई है कि प्रमोटर के पास राइट है कि वो 1 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो अपनी कॉस्ट जो अपना टोटल प्राइस चार्ज करता है अलॉटी से
वो उसके अंदर अपना मेंटेनेंस का भी फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो चार्ज कर सकता है। एंड अगर इस पीरियड में ये क्लॉज ये और चीज ये रूल जो रूल नंबर 11 है, क्लॉज नंबर 11 है, वो ये और बात करता है कि अगर वो 1 साल के अंदर अंदर नहीं बन पाती है एसोसिएशन, तो प्रमोटर के पास राइट है कि वो उसके आगे का भी अगले साल का भी ले सकता है। और इस केस में जो उसने पहले चार्ज किया था उसको प्लस 10% एक्सक्यूलेशन के तौर पे वो अलॉटी से चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्लॉज नंबर 11 बात करता है। एंड अगर और हम सेक्शन 47 जो डील करता है मेंटेनेंस से रिलेटेड, 47 ऑफ द उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनरशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट 2010, उसके अंदर एक चीज लिखी होती है कि टिल द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन, कि जो कि फॉर्म होती है एज पर सेक्शन 14(2), तब तक प्रमोटर के पास राइट होता है कि वो मेंटेन करेगा कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज को। सेक्शन 14(2) की बात करें तो 14(2) में हमें मतलब एसोसिएशन फॉर्म होने के वो दे रखे होते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हो जाती है, किस परसेंटेज पे, कि कितनी सेल डीड हो जाती है। वैसे तो 60% ऑफ द अपार्टमेंट जो भी होता है, अगर वो सेल हो जाते हैं, सेल डीड हो जाते हैं उसकी, तब एसोसिएशन बनाने का मैंडेटरी होता है प्रमोटर के, कि तब उसको बनानी है। उसके बाद हम एनालिसिस की बात करें तो बेसिकली इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं हुई है, क्योंकि वो फिर एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है कि उसमें फॉर्मेशन एसोसिएशन कैसे बनेगी, क्या क्या कंडीशन होती है, एसोसिएशन को क्या चीज़ ट्रांसफर होती है, कब क्या होता है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब बेसिकली बात करें तो इसके एनालिसिस की कि एज पर सेक्शन 47 ऑफ द उत्तर प्रदेश प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनरशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट 2010 क्लियरली स्टेट्स दैट द promoter shall be required to maintain common areas and facilities of the project till the formation of association of allottees as per the condition laid down in the applicable laws. The agreement for sale rules 2018 prescribed by the Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority clearly defines that the payment for maintenance of common areas till the period of 1 year from the date of completion certificate, जो कि बात की वो राइट होता है अलॉटी का, मतलब प्रमोटर का, कि वो अलॉटी से चार्ज कर सकता है। एंड वो अगर 1 साल के अंदर अंदर भी उसकी एसोसिएशन नहीं बन पाती है तो उसके बाद का भी वो चार्ज कर सकता है। तो ये था हमारा मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। हो गया सर? वेरी गुड, रिकॉर्डिंग स्टॉप करा दो फिर।